Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2020 Civil Law 2. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए ये एग्ज़ाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, किसी ने ये स्कैन करके डाला हुआ था। जो रियल कॉपी वैसे हमें मिल नहीं पाई है, जैसे कि हर बार हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो मिल नहीं पाई है। तो ये डाला हुआ किसी ने फ़ोटो खींच के, बट ठीक से नहीं किया हुआ, सारा क्लियर नहीं है, बट वी विल ट्राई कि आपको जो है समझ में आ जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ where a plaintiff has been prosecuting with due diligence in good faith another civil proceeding relating to the same matter and issue in court which from the defect of jurisdiction is unable to entertain it. The period so spent by the plaintiff is liable to be excluded in computing the period of limitation for a suit under section कौन सा limitation act में? This is section 14C is the answer. Next is 2. Judgment was passed on 10/7/2002 and decree was prepared on 25/7/2002. An application for certified copy was made on 11/7, means before the preparation of decree, and the certified copy was ready on 1/8/2002 and a delivery of copy was taken on 5th August 2002. Under section 12, the period of limitation to be excluded is from 11/7/2002 to 1/8/2002. A is the answer. सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 12 है ये. Next is 3. The word after in section 6A of Hindu Minority and Guardianship Act need not necessarily means after the lifetime but in the absence of. Was held in which following case? It was Geeta Hariharan and versus RBI. C is the answer. बहुत ही फेमस केस है ये. इस पर एक केस और आ चुका है, ABC वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली, वो भी देख सकते हैं आप. Next is 4. Under the Hindu Marriage Act, a wife may present a petition for dissolution of marriage by decree of divorce on the ground that her marriage was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age before attaining 18 years. बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेक्शन कौन सा है? 13(2) का 4. D is the answer. Next is 5. Under Hindu law, children of void and voidable marriage are legitimate under which section of Hindu Marriage Act? That is section 16. D is the answer. 5 किसके लिए है? कंडीशंस हैं. फिर 11 में क्या है? void marriage. 17 में क्या है? punishment. Next 6. Which of the following person is not class 1 heir of the succession to the property of a Hindu male under Hindu Succession Act? तो फादर है, फादर कौन होता है? क्लास 2 होता है. A is the answer. Next is 7. A Hindu husband can claim maintenance from his wife under which of the following legislations? Hindu Adoption and Maintenance and Hindu Marriage Act, both. Hindu Adoption Maintenance Act में तो सिर्फ वाइफ और चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स जो है वो ले सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड या वाइफ कोई भी मांग सकता है, तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 8. A married boy or girl or a boy or girl who has completed age of 15 years can be adopted under the Hindu Adoption and Maintenance Act. Generally no, prohibited है under section 10, और वहाँ लिखा हुआ है section 10 में ही कि भाई अगर कस्टम यूसेज परमिट करते हैं उनके तो वो कर सकते हैं. सी इसका आंसर रहेगा. Section 9. Whom the following is not a dependent of a deceased Hindu under section 21 of Hindu Adoption Maintenance Act? तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर नहीं होते हैं, फादर मदर है, विडो रीमैरिज है, अनमैरिड डॉटर है, ये रहेंगे. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 10. प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 21. बी इज द आंसर. 20 में क्या है? राइट ऑफ चाइल्ड इन वूम्ब. 23 डिलीटेड. 22 क्या है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन.
नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ एक्चुअल डिजर्शन। फैक्टम ऑफ डिजर्शन होना चाहिए, एनिमस डिजरेंडी होना चाहिए। फिर है डिजर्शन शुड बी विदाउट अ रीजनेबल एक्सक्यूज एंड विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। यस। स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 1 year मस्ट हैव रन आउट बिफोर द पिटिशन इज प्रेजेंटेड। तो इसमें 2 years की बात की गई है, मस्ट हैव रन आउट हुआ है सेक्शन 13 क्लोज 1B में कि भाई हैज डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 year इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 12, हिंदू मेल एक्स डाइज इंटरस्टेट लिविंग बिहाइंड हिज फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो एंड फादर्स ब्रदर एंड फादर सिस्टर। हु आउट द फॉलोइंग विल सक्सीड एक्स। तो किसको प्रॉपर्टी मिलेगी? देखो मान लो ये एक्स है, ये इसके फादर था जो कि डाइड है, ये है इसकी विडो। ओके, अब एक्स का एक ब्रदर था वो भी डाइड हो गया, ये उसकी विडो है। फिर फादर की विडो मतलब ये स्टेप मदर है, इसकी मदर नहीं है, ठीक है। और जो फादर है इसके, उनका भी एक ब्रदर है जो अभी जिंदा है, एंड फादर की एक सिस्टर भी है। तो अगर हम सक्सेशन एक्ट में देखें स्केड्यूल में, तो सेक्शन 11 में लिखा हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि जो स्केड्यूल में जो एंट्रीज हैं इन क्लास 2 वो जो है नेक्स्ट एंट्री को रिमूव कर देंगी, मतलब फर्स्ट एंट्री विल प्रेफर्ड ओवर दी नेक्स्ट वन। तो फादर विडो जो है और ब्रदर विडो ये एक ही एंट्री में है। कौन सी एंट्री में? एंट्री 6 में इन क्लास 2, ठीक है। फिर फादर्स ब्रदर फादर सिस्टर ये हैं एंट्री 7 में, तो ये दो हो गए एक्सक्लूड। तो किसको मिलेगा? फादर विडो एंड ब्रदर्स विडो को। तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंकरेंस ऑफ 3 पार्टी ये चाहिए। तो वैसे 3 पार्टीज होती हैं क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड श्योरिटी। श्योरिटी का डिस्टिंक्ट प्रॉमिस होता है टू बी आंसरेबल, ये ठीक हो गया। फिर लायबिलिटीज टू बी लीगली एनफोर्सेबल, ये से होना चाहिए। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एग्रीमेंट तो एक ही बनता है ये, बट उसमें कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, फिर प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में, एंड श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में। दे आर 3 डिस्टिंक्ट, तो एक्स्ट्रा ओनली वन नहीं रहेगा यहाँ पर, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14, द टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? 182 सी इज द आंसर। नेक्स्ट 15, ड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATM, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट द ऑक्शन सेल, एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड है या फिर एक्सप्रेस है ये? दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 16, द केस फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट रिलेटेड टू एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी इज द आंसर। ये मैरिज वाला था ना कि भाई आपका फादर मरेगा तब मैं आपसे शादी करूंगा, फादर मरा नहीं, उसने पहले ही कर दिया। नेक्स्ट 17, ए वॉइड एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ या फिर इलीगल इन नेचर या फिर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ए इज द आंसर। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 2G में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 18, communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, B is the answer। कहाँ लिखा हुआ ये? सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और जो एक्सेप्टर है वो कब बाउंड होगा? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। नेक्स्ट 19, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। देखिए बताइए मैंने ये ऊपर, when it comes to the knowledge of the proposer, A is the answer again, section 4। Next 20, A owes B under a contract sum of money the amount of which has not been ascertained. A without ascertaining the amount gives to B, B in satisfaction thereof accept the sum of 5,000. This is discharge of whole debt, A is the answer। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 63 और ये है इलस्ट्रेशन D। नेक्स्ट 21, मैच करना है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 में है, प्लेज कितने में? 172 में, कंटिन्यूइंग गारंटी 129, बेलमेंट 148। तो क्या बन गया इसका? 3421। बट इसमें देखिए यहाँ पर पहले ए लिख दिया, ये थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया इसीलिए इसको। तो फिर क्या बनेगा इसका? DCAB, DCAB, D इज द आंसर। नेक्स्ट 22, Indian Contract Act came into force on 1st September 1872, C is the answer। नेक्स्ट 23, अब मैच करना है फिर से
यह है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट से क्वेश्चन। देखिए इसमें भी यहाँ पर पहले 2 लिख दिया और ABCD नीचे लिखा, तो हम इसको उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये इधर मेंशन किया, पहले 1 2 3 लिख दिए हैं, अब इनको मैच करना है, तो हम उल्टा करते हैं। 1 का रहेगा डिपॉजिट ऑफ रेंट, फिर 19 में क्या है, लीज ऑफ वेकेंट बिल्डिंग्स, 13 में क्या है, लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग एंड रेंट इन गुड रिपेयर, और 16 क्या है, स्पेशल प्रोसीजर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। तो क्या बन गया, DABC, C इज द आंसर। Next 24, under which section of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act the controller can exercise the power of magistrate for recovery of fine? That is section 31, B is the answer. Next 25, the standard rent fixed by controller under section 4(1) of Himachal Urban Rent Control Amendment Act 2009 is payable from the date of filing of application या फिर fixation of standard rent, या फिर date of creation of tenancy, या फिर date of court decides. From date of filing of application for fixation of standard rent, A is the answer. Next is 26. Find the premium note to be changed for grant renewable discharge of tenancy under which of the following provision of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act. That is section 8. B is the answer. 27. Which of the following heirs of deceased tenant who continue in possession after the termination of tenancy is not mentioned in Schedule 1 of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act? तो स्पाउस है, सन ऑफ डिसीज सन है, सन ऑफ डिसीज डॉटर नहीं होगा, डॉटर है, तो C इज द आंसर। नेक्स्ट 28, अंडर सेक्शन 30 का 3 ऑफ हिमाचल अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट द पेनल्टी इम्पोज्ड इज, कितनी पेनल्टी है 30 के 3 में, दैट इज imprisonment for a term exceeds 6 months and fine may extend to 1,000 rupees. A is the answer. Next 29, under Himachal Pradesh Urban and Control Act, which of the following court has power to transfer proceedings? High Court has the power. B is the answer. Next 30, under which of the following section there is a provision for conversion of residential building into non-residential building? That is section 12. D is the answer. किसका, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में। Next 31, the landlord shall not claim or receive any premium or other like sum in addition to standard rent or any rent in excess of such rent, but landlord may stipulate for and receive in advance an amount not exceeding 3 month rent in lump sum. Has been provided under which of the following provision of Himachal Pradesh Urban Rent Control Amendment Act 2009? तो ये है सेक्शन 7. B is the answer. Next 32, under section 6 of Himachal Pradesh Urban Rent Control Amendment Act, increase of standard rent shall not exceed 10%, 20, 30 or 5. That is 10%. A is the answer. Of the cost of addition, improvement, alteration, special repairs. Next 33, Rajesh Kant Roy versus Shanti Devi is a case of the following principle of Transfer Property Act. कौन से पर है ये, vested interest पर है। A is the answer. Next 34, where the mortgager delivers possession of property to the mortgagee is called, that is usufructuary mortgage. C is the answer. इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है, और एनुमनस में भी एब्सोल्यूट होता है, एनुमनस तो मिक्स है, किसी का मिक्स हो सकता है। यूसुफ्रक्चर में क्या है, सिर्फ पोजेशन देते हैं कि भाई आप जिससे जो भी यूसुफ्रक्ट मतलब जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उससे अपना रेंट लेते रहो, मॉर्गेज की मनी जो है पे करते रहो। सेक्शन कौन सा है मॉर्गेज का, 58A। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज कितने में है, B में, E फॉर इंग्लिश, यूसुफ्रक्चरी है D में, एनोमलस है G में। नेक्स्ट 35 सेक्शन हैं ये, अब मैच करने हैं फिर से वही, तो हम जैसे करेंगे। सेक्शन 14 क्या है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, डी हो गया, तो डी के 2 ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अगला है पार्ट परफॉर्मेंस 53A ही है, तो ये हो गया C, तो A ही है इसका आंसर आ गया, फिर है A और है फिर है B। A इज द आंसर। नेक्स्ट 36, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी मेड विद द इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर ट्रांसफर शैल बी अवॉइडेबल। डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है, 53, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। नेक्स्ट 37, इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द लॉ रिलेटिंग टू TPA
टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, ग्रोइंग ट्रीज है, क्रॉप्स, ग्रास और टिम्बर नहीं है, ये क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है। डी इसका आंसर रहेगा, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में लिखा हुआ है। 38, if the transfer property is made with condition, the condition is void and transfer is valid. Where transfer is made with void condition, yes, ये ठीक है। Where transfer is made with void condition and made with condition restraining absolutely further transfer of such property, तो ये तो है ही है। फिर made absolute with condition restraining enjoyment of such property, तो ये भी है। अब इसको अगर एक तरीके से देखें तो जो ए है ये भी ठीक ही होना चाहिए। अगर कंडीशन पहले से ही void थी तो ट्रांसफर तो हो ही गया। Where transfer is made with void condition, कंडीशन तो ऑलरेडी वॉइड है, तो तीनों होने चाहिए थे। बस इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उसके हिसाब से डी बनता है। हो सकता है कि वो ये ना कह रहे हुए कंडीशन तो पहले ही वॉइड थी, ट्रांसफर तो हो ही गया है, तो ऑब्वियसली उस एंगल से देखें तो बी और सी ठीक हो गए। बट मैं कहूँगा कि ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए था। 39, द मोर्टगेजी हैज़ द राइट टू सेल द मोर्टगेज प्रॉपर्टी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। कहाँ पर, इंग्लिश मोर्टगेज में। ए इज़ दी आंसर। क्यों, उसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट 40, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज टेक्स प्लेस बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम लिमिटेड देयर बाय नोटिस टू क्विट बाय द लैंडलॉर्ड, इससे नहीं होगा। बाय फॉरफीचर, बाय एक्सप्रेस रेंडर, तो सी इज़ दी आंसर। बाय नोटिस टू क्विट से नहीं होता, नोटिस ही दिया है ना, उससे डिटर्मिनेशन नहीं होगा। जो वो टाइम पीरियड दिया है नोटिस में वो ख़त्म हो जाएगा तब उससे हो जाता है, तो इसका सी आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये, 111 TPA। Next 41, waiver of forfeiture under section 112 takes place by acceptance of rent which become due since forfeiture, yes. By distress of such rent, yes. Any other act on the part of lessor showing intention to treat the lease as subsisting, all of the above, D is the answer. Next 42, exemption of lease from agricultural purpose कहाँ mention किया गया है, Section 117, B is the answer. Next 43, before the Limitation Act of 1963, the Limitation Act being followed by Indian courts and tribunals was Limitation Act of 1908. C is the answer. Next 44, period spent in prosecuting the case before consumer forum can be excluded अगर good faith में किया था तो C is the answer। वहाँ लिखा ना any court or tribunal, तो सेक्शन 14 है लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 45, अंडर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द फॉलोइंग द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन ओनली व्हेन ऑब्जेक्शन लिमिटेशन नो व्हेन द डिफेंडेंट डज नॉट कन्फेस जजमेंट या ओनली व्हेन द डिफेंडेंट डज नॉट एडमिट हिज लायबिलिटी, सुओ मोटो इवन व्हेन द डिफेंडेंट हैज नॉट टेकन द एनी ऑब्जेक्शन। डी इसका आंसर है, तो मैंडेटरी है कोर्ट के लिए करना। Next 46, in order to attract section 4 limitation act the court should be closed for whole day या फिर normal working hours, तो B is the answer, ये section 4 में लिखा हुआ है। Next 47, period of limitation for a suit by a Hindu governed by Mitakshara law to set aside his father's alienation of ancestral properties 12 years from the date of alienee takes possession of the property, तो A है। और देखिए इसमें क्या है ना, C में भी बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है, तो A लगाओ या C लगाओ, दोनों ही ठीक है। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, इट इज़ आर्टिकल 109 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 48, सेक्शन 22 ऑफ लिमिटेशन एक्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कॉन्टिन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ लिखा कॉन्टिन्यूस ब्रीच एंड टोर्ट्स, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 49, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अ सूट फॉर to recover possession of movable or immovable property comprised in religious charitable endowment transfer for a valuable consideration under article 96 of the schedule is, देखिए यहाँ schedule बता दिया है इधर, that is 12 years, B is the answer। Next 50, under article 112 of schedule the period of limitation or filing a suit by central government is 30 years for any suit, C is the answer। So friends, here we have discussed preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2020 पेपर सिविल लॉ 2। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है, कोई सजेशंस, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक।
And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.